الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم. کچھ بولیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ 2025 اور 26 کا عمرہ قرآن اندازی ہے. مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جن کا نام قرآن اندازی میں آئے گا. وہ حرمین شریفین کی زیارت کرنے جائیں گے. ہمیں اور فیکٹری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے ہم رکاب ساتھیوں، مزدور بھائیوں، آج کے اس بدحالی اور تنگ دستی کے ماحول اور دور میں اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں باعزت روزگار عطا فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اسے ہے جس کو یہ نعمت میسر نہیں، جو روزگار کے لیے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ادارے کو ہمارے لیے ذریعہ رزق بنایا، ذریعہ معاش بنایا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور اس نعمت کی اور اس رحمت کی قدر کرنا ہم سب پہ واجب ہے. انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے ہم اپنے فرض منصبی کو انجام دیں گے. فرض منصبی کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو ایمانداری اور دیانت سے پورا کرے. جو جس کا کام ہے اس کو اپنے کام کو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائے. اور سینئر اکابرین کے، سینئر افسران کے اور سینئر اپنے افراد کی عزت تکریم کا خیال رکھیں. اور سینئر لوگ اپنے ماتحت لوگوں پر دست شفقت رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت جو ہے دو بالا ہو جائے گا. رات چوگنی اور دن دوگنی یہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. دوستان عزیز، ہر ادارے کی خوبصورتی اس کے ڈسپلین میں ہے، اس کے نظم و ضبط میں ہے. چونکہ انسانی معاشرہ ڈسپلین اور نظم و ضبط کے تحت چلتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. انسان حیوان کی طرح نہیں جیتا. جہاں جگہ ملا وہاں اس نے کھڈا بنا کے رات گزار کے آگے چلا، پھر دوسری طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. انسان ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتا ہے. ہم اپنے گھر میں تمام گھر کے رولز کو فالو کرتے ہیں کہ کہاں کچرا پھینکنا ہے، صفائی کس طرح کرنی ہے، گھر میں کھانے پینے اور کچن کا کیا انتظام ہونا چاہیے، اور خود نوش کا پورا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح فیکٹری کے اندر آنے کے بعد بھی ہم پر بہت سارے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور کوتاہی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. تو آج ہم عہد کریں کہ ہم کسی بھی نظم و ضبط کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ کچھ چیزیں مضر صحت ہونے کی وجہ سے قانونی اور اخلاقی طور پر ناقابل استعمال ہوتی ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. جس میں گٹکا، پان اور نسوار، دیگر منشیات والی چیزیں، نشے آور چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور ہمارا صحت بھی متاثر ہوتا ہے. اور ادارے کے اندر اس حالت میں ہم کام کرتے ہیں تو ادارے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے ادارے کو، اپنے ذات کو، اپنے پیسوں کو کسی طرح نقصان سے متاثر ہونے نہ دیں. یہ ہر عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کریں. کچھ چیزیں آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، سیفٹی آلہ جات، وہ آپ کے صحت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے کمپنی آپ کو دیتی ہے تو آپ ان کو استعمال کریں.
ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पे केमिकल, डस्ट और बदबू वगैरह है, वहां आपको मास्क दिया जाता है तो आप उसको जेब में ना डालेंगे बल्कि उसको इस्तेमाल करेंगे। जहां खतरा है तो आपको हेलमेट दिया जाता है तो आप वहां हेलमेट पहनेंगे, बगैर हेलमेट के काम नहीं करेंगे। जहां आपको शूज दिया जाता है वहां आप शूज पहनेंगे, बगैर शूज के आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि चोट लगने की सूरत में आपका पैर मुतासर हो सकता है। हेलमेट ना होने की वजह से आपके सर पर चोट लग सकता है, और शलवार कमीज में पहनने के साथ आप मशीनों के करीब घूमने की वजह से आपका मुमकिन है कपड़ा मशीन के किसी ऐसी पुर्जे में आ जाए जो आपको खींच ले और आपको नुकसान पहुंचे। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी यूनिफॉर्म, शूज, हेलमेट, मास्क या दीगर आपको आपकी सेफ्टी वाली चीजें देती है। इससे आप हरगिज लापरवाही ना करें, इससे हरगिज आप लापरवाही ना करें। एक तो डिसिप्लिन बरकरार रहेगा, दूसरा आपकी सेहत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, तो आप अपने सेहत की हिफाजत करेंगे, फैक्ट्री की रूल्स को फॉलो करेंगे और इन तमाम चीजों को आप मेंटेन करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस तरह के मामलात में आगे नहीं बढ़ेंगे। नमाज पढ़ने वाले तमाम अहबाब, हम तमाम मुसलमान वर्कर्स से कहते हैं कि पंजगा ना नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ने वाला सिर्फ नमाज पढ़े और नमाज पढ़ते वक्त फैक्ट्री को और अपनी इबादत को दोनों को मलूज़े नजर रखे, आसान तरीके से इबादत करे, आसान तरीके से वुजू करे, बेहतर तरीके से नमाज पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डंडा उसके ऊपर नहीं, लेकिन जितना आसान तरीके से वो यहाँ नमाज पढ़ता है ऐसा आसान तरीके से वो अपने घर में पढ़ता है। दोनों के दरमियान फर्क नहीं होनी चाहिए। घर में जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं इसी तरह आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं इसी तरह आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ नमाज पढ़ने का वक्त ज्यादा हो, मस्जिद और घर में नमाज पढ़ने का वक्त मामूल हो, तो ये अल्लाह को भी पसंद नहीं। मैं मजहबी हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से आपकी इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूँ। और इस तरह आप जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो पैंट शर्ट जो आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है इसको आप साफ सुथरा रखें, इसको पाक रखें, इसमें आपकी नमाज हो सकती है। और आप सुबह नमाज पढ़ने और के लिए जाएं तो यूनिफॉर्म उतार दें, फिर नमाज पढ़ने के बाद आए तो यूनिफॉर्म उतार के, कपड़े उतार के यूनिफॉर्म पहने, तो इसमें आपका वक्त लगेगा, बार बार आपके कपड़े उतारने और पहनने से मैले हो जाएंगे, दूसरा फैक्ट्री का वक्त मुतासिर होगा। इसमें आप कोशिश ये करें कि अपने इन लिबास को पाक साफ रखें और कोशिश ये करें कि आपको बार बार नमाज या किसी और जगह यूनिफॉर्म चेंज करने की जरूरत न पड़े। और आमतौर पर अभी आपको बेहतरीन शूज दिए गए हैं, इन शूज के साथ अगर आप वुजू खाने पे जाएं, इस्तेमाल के काबिल हूं, तो आप बेशक वहां जाएं, वुजू करके इसको पहन के नमाज पढ़ लें। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो फिर उस जगहों से आपकी गुजर ना हो जो प्रोडक्शन एरिया है, जहां आपको कैमरा देखे और ये बताए कि ये बगैर शूज के प्रोडक्शन एरिया में घूम रहा है, बगैर यूनिफॉर्म के ये प्रोडक्शन एरिया या खतरनाक जगह पे नजर आ रहा है। तो ऐसी जगहों पे आपका नजर आना ये आला क़ियादत को, यानी हमारे सीनियर लोगों को जो हेड ऑफिस में बैठ के कैमरे के जरिए हमें देख रहे हैं, उनको ये तासुर जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं, हम शूज नहीं पहन रहे हैं, जबकि हम शूज पहन के काम करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की लापरवाही से हमारा पूरा वो क्रेडिट खराब हो जाता है। तो लिहाजा इसको आप खराब होने न दें ताकि शिकायत का मौका न मिले। आपकी तस्वीर हमें सेंड करके हमें ना दिखाया जाए, देखो इतने सारे लोग हैं बगैर यूनिफॉर्म के फैक्ट्री में घूम रहे हैं। अगर उस वक्त आप नमाज के लिए जा रहे हैं, अगर उस वक्त आप किसी जुम्मा के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन एरिया से होता हुआ जा रहे हैं, तो लिहाजा इसकी शिकायतें मौसूल हुई हैं। लिहाजा इसका आप ख्याल रखें, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इन तमाम रूल्स को फॉलो करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से 2025 और 26 की सारी मराद कंपनी आपको दे रही है। हम सीनियर मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, हम यहाँ इजार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मेजर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, काजिम साहब, दीगर सीनियर जितने अफसरान हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इनका ताउन आपके माली मराद दिलाने में होता है और हम इनके पास जाते हैं, ये हमारी आपकी तर्जुमानी ऊपर करते हैं। बसा औकात ऊपर बात करने की हमें जरूरत पड़ती है तो हम खुद भी वहां जिक्र कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम सब एक पेज पे फैक्ट्री को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक पेज पे रहेंगे तो आपका कोई चीज नहीं रुकेगा। और ये तासुर आप दिल से निकाल दें कि ये फला को पता नहीं था भेजा गया, फला को पता नहीं था भेजा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 तारीख को हमारी सीनियर लोगों से मीटिंग हुई जिसमें ये बहुत सारी चीजें तय हुई, जिसमें आपके प्रोडक्शन बोनस को फिलफौर देने का उन्होंने हमें कहा। उसके बाद आपके टेंसी बोनस का मंथ भी हमें बता दिया, आपके 5% का मंथ भी बता दिया कि इसी साल में देंगे, अगले साल में नहीं ले जाएंगे। दिसंबर तक ये सारी चीजों को क्लियर कराने का उन्होंने हमें
यकीन दहानी कराया। जो चीज अगर जबानी तौर पर दी जाती है उस पर लेटरबाजी करना माकूल नहीं है, बार बार उस पर मीटिंगें करना माकूल नहीं है, ऐसी छोटी चीजों के लिए जनरलबाजी मीटिंग करना माकूल नहीं है। अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो उसका मतलब ये है कि सारी चीजें आपके ठीक जा रही हैं। हम अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पैसे हमारे टाइम पे मिल रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह इसी तरह रहेगा। आप अपने प्रोडक्शन को बरकरार रखें, बेहतर तरीके से जहां कंपनी को जरूरत पड़े तो आप ताउन करें, काम सफाई सुथराई के साथ करें, अपने लिबास को साफ सुथरा रखें, यूनिफॉर्म को हमेशा पहने। मैं अपने अहदेदारों से भी कहता हूं कि आप भी लापरवाही न करें। आप आइडियल हैं, लोग आपको देख के आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, लिहाजा आप एक नमूना बन के दिखाएं कि भाई यूनिफॉर्म हम भी पहन रहे हैं, हम भी आपके हम रिकाब हैं, आपके साथी आपके बराबर हैं, कोई हमारे दरमियान इम्तियाजी फर्क नहीं है। फैक्ट्री के काम के हवाले से हम सब वर्कर हैं, पहले हम वर्कर हैं, उसके बाद फिर हमारे होते हैं, उसके बाद हमारी बाकी चीजें हैं। ये सारी चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे तो ये आपको मैं बता दूं कि 2092 से जो हमारे हज का सिलसिला शुरू हुआ, 2092 में हज कुरानंदाजी में लोग गए, फिर 2093 में हज कुरानंदाजी में लोग गए, 2094 से लेकर 2002 तक, यानी मुकम्मिल ये 10 साल का अरसा है। 2003 में फिर हज शुरू हुआ और इन बीच में हज के पैसों को हज के नाम पे कुरानंदाजी करके तकसीम किया गया था। उस वक्त मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान जो बातचीत हुई है वो पॉलिसी एक फैसला था, उस पर 10 साल तक मुकम्मिल अमल हुआ। उसके बाद फिर दोबारा हज का सिलसिला शुरू हुआ। 38 लोग आपके जा चुके हैं, 38 लोग में अक्सरियत हज कर चुके हैं, उसमें से बाद में 4-5 लोग उम्रा कर चुके हैं। ये टोटल 38 लोग आपके जा चुके हैं जिनके नाम हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद, और उनमें से एक वाहिद इस्लाम बाकी है जिसके पासपोर्ट का मसला था, वो नहीं जा सका। अभी 6 अफराद की कुरानंदाजी होगी, अभी 6 अफराद की कुरानंदाजी होगी इन तमाम लोगों में जो हज पे नहीं गए, जो यहाँ के भी हैं, पोर्ट कासिम के लोग हैं। 6 अफराद की उम्रा कुरानंदाजी होगी, ये उम्रा पे जाएंगे, उम्रे के अखराजात कंपनी उनको तय करेगी। 20 दिन का ये उम्रा है और ये लाजिम भी नहीं है कि किसी महीने में भेज दिया जाए। हमने ये अपने सीनियर लोगों से गुजारिश की है कि हमारे जितने मामला 2025 और 26 के हैं इसको क्लोज कर दें, यानी इनको तमाम अदा करके खत्म कर दें। तो लिहाजा अगर हम इनको रमजान की तरफ के लिए रखेंगे तो ये अगले साल में चला जाएगा जो 27 होगा। तो हमें रमजान से पहले भेजना चाहते हैं। अगर आपके पासपोर्ट बेहतर तरीके से जल्द अज जल्द बन गए तो हम रबीउल अव्वल शरीफ में आपको भेजने का मुकम्मल इंतजाम इंशाअल्लाह मैनेजमेंट के साथ मिलकर करेंगे। तो ये बातें हैं, आप जहन में रखें। और एक ये मसला रखें, लड़कियों में से सिर्फ एक नाम आएगा। अगर एक नाम लेडीज का आ गया तो उसके बाद लेडीज का कोई कुरानंदाजी में नाम काबिल कबूल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि लेडीज के साथ महरम है, लेडीज एक, और अगर एक लेडीज का नाम निकल आया उसके बाद भी अगर किसी खातून का नाम निकल आएगा तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ये मैनेजमेंट और सीबीए के दरमियान फैसला है, ये आप जहन में रखें। पहला नाम जो भी लड़की का निकलेगा वो काबिल कबूल है। उसके बाद अगर, क्योंकि सब लड़कियों के नाम इसमें डले हुए, मुमकिन है 2 निकले 3 निकले, लेकिन जाएगी उनमें से सिर्फ एक, बाकी रिजेक्ट होंगे। और टोटल जो है वर्कर 6 जाएंगे, जिसमें 6 के 6 मर्द हो सकते हैं, 6 के 6 लड़कियां नहीं हो सकती। लड़कियों में सिर्फ एक जाएगी क्योंकि उसके साथ महरम का डबल खर्चा है। तो ये फैसला शुरू से चला आ रहा है, इसको हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू का नाम लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हमको भी ज्यादा वक्त नहीं लेते, मैनेजमेंट के लोग अफसरान खाना खाने तशरीफ ला रहे हैं। सर इसको खोलें, ये इंतहाई ईमानदारी से साफ शफाफ कुरानंदाजी है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम नहीं है तो डब्बे में अपने नाम तलाश कर सकता है, वह मेरी तरफ से खुली उसको इजाजत। Yes. नूर नबी मोल्डिंग 1826, नियाज हुसैन मोल्डिंग। एक मिनट, बाकी दूसरों को पावर शिगरी, यावर शिगरी 1649।
جی چار ہو گئے. ہوٹل مانو 1760 اسمبلی گرل. حسن بانو. ایک منٹ رکو پرچیاں گن لیں. ایک منٹ رکو پرچیاں گنو. 4 5 ایک اٹھا دیں بس. ایک آخری اٹھا دو. یہ کن ہاں یہ کیا. ہاں ایک اٹھاؤ ایک اٹھاؤ. محمد رمضان 1726 محمد رمضان آٹو اسٹور. یہ 5 ہو گئے. چھٹا یہ شمشاد احمد آٹو اسمبلی بوائز. شمشاد احمد کے متعلق یہ مسئلہ ہم روک دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس وقت اس کی طبیعت بالکل ناساز ہے. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اس کی جگہ کسی اور کی قرآن اندازی کر دیں. یہ جا نہیں سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہت بیمار ہے آپ جانتے ہو. اگر کسی کو اعتراض نہیں حاج صاحب اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے نہیں تو یہ رک جائے گا. اس دفعہ یہ نہیں جا پائے گا. شمشاد ایک منٹ نکالو. اس کو کینسل کر دیں سر. بس اس کو کینسل کر دو. نہیں ہے. محمد صدیق آٹو اسٹور. اس کے ورثہ سے ہم بات کریں گے. یہ چونکہ جائز جا نہیں سکے گا. ایسا ہے نا سر فوراً فیصلہ ہونا. چیک کرنے آئیں گے نا لوگ. یہ آپ کو آؤٹ ہو گئے. جی سر آؤٹ ہو گیا. ایک لڑکی آؤٹ ہو گیا. 8 ہو گئے.